हाँ बोलो। गोपी बोलो करूं? तारो टर्न छे आज? हाँ हाँ ठीक है करो। वैकुंठ दादा टर्न केवी रीतना खबर पड़શે? कोणું કઈ રીતે એટલે કોનો ટર્ન કોના પછી છે કેવી રીતના ખ્યાલ આવશે? સ્નેહ સંભળાયું નહીં. ગ્રુપમાં લિસ્ટ મોકલ્યું છે રાજાએ પહેલા, તો એના પરથી પહેલાનું હતું એ જ છે ને? નવું કઈ કર્યું નથી ને? ના રાજા નવું નથી કર્યું. હા એટલે મારું છે ને તેજસભાઈ પછી મારું હતું એટલે હું પૂછી રહી હતી રાજા. હા એટલે કાલે ગૌરીએ કર્યું હતું, હવે ગોપી છે. ચંદાબેન ને કેન્સલ કરવાના છે, પછી ભાવિન અને જય, લતાબેન પણ નહીં, પછી સ્નેહા, એના પછી તારો ટર્ન છે. હું ગ્રુપમાં ફરીથી મોકલી દઉં છું, જોઈ લો. હા રિવાઇઝ કરી દઉં છું. જે લોકો નથી પાર્ટિસિપેટ કરતા એ લોકોને કાઢી દઈશ. ઓકે ઠીક છે રાજા. હા ગોપી કરો. હા આ પ્રમાણે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય ફળોનો સેવાફળ ગ્રંથોક્ત અલૌકિક સામર્થ્ય, સાયુજ્ય અને વૈકુંઠ આદિમાં સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ, આ ત્રણ ફળોના સ્વરૂપ તથા તે ફળો કોને મળી શકે છે તે બાબતમાં પ્રાચીન વ્યાખ્યાકારોમાં મતભેદ રહ્યા છે. તે મતભેદોનો પણ આખો ખ્યાલ મેળવી લેવો જોઈએ. પહેલું, પુષ્ટિ જીવને પ્રથમ, મર્યાદા પુષ્ટિ જીવને દ્વિતીય અને પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવને તૃતીય. આમ પુષ્ટિજીવની કક્ષા પ્રમાણે મળનારા આ ફળો છે. મતલબ પુષ્ટિ જીવને પ્રથમ ફળ એટલે કે અલૌકિક સામર્થ્ય, મર્યાદા પુષ્ટિ જીવને દ્વિતીય ફળ મતલબ સાયુજ્ય અને પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવને તૃતીય મતલબ વૈકુંઠ આદિમાં સેવા ઉપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ. આમ પુષ્ટિજીવની કક્ષા પ્રમાણે મળનારા આ ત્રણ ફળો છે. ત્રણેય ફળો અનુક્રમે ઉત્તમ, મધ્યમ અને સાધારણ ફળો છે. પ્રથમ પુષ્ટિ ભક્તિનું ફળ છે, જ્યારે અન્ય બે મર્યાદા ભક્તિના ફળો છે. મતલબ પ્રથમ જે અલૌકિક સામર્થ્ય છે એ પુષ્ટિ ભક્તિનું ફળ છે અને અન્ય બે મર્યાદા ભક્તિના ફળો છે. સાયુજ્ય ઉત્તમ ફળ છે, જ્યારે અન્ય બે ઉત્તમ ફળની યોગ્યતા કેળવી આપનારા અધિકાર સિદ્ધરૂપ અવાંતર ફળો છે. પ્રથમ બે પુષ્ટિ ભક્તિના ફળો છે, જ્યારે ત્રીજું મર્યાદા ભક્તિનું ફળ છે. પ્રથમ અતિ અંતરંગ સેવાનું, બીજું અંતરંગ સેવાનું, જ્યારે ત્રીજું બહિરંગ સેવાનું ફળ છે. સારું રાજા આગળ. જેમ આપણે આગળ એ વિષયને જોયું કે ટીકાકારોએ આગળ આપણે એ વાત સમજ્યા કે ટીકાકારોએ આ ત્રણેય પ્રકારના ફલને અલગ અલગ કોટી આપી છે. એટલે એની ઉત્તમતા, મધ્યમતા, હીનતા આદિના વિષયમાં બધા ટીકાકારોનો અલગ અલગ મત છે. એને આપણે જોઈ ગયા. હવે અધિકારી પ્રમાણે આ ફલોની વ્યવસ્થા બધાએ કેવી રીતે વિચારી છે એને અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે પુષ્ટિ મર્યાદા. આ વિચારવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જો સંપ્રદાયમાં બધા જ પુષ્ટિજીવોને એક જ કેટેગરીમાં રાખીને અને નિર્ણય થતો તો બધા જીવોના વિષયમાં મહાપ્રભુજીએ પણ એક જ ફલનો નિર્દેશ કર્યો હોત. પરંતુ આ સંયોજન એટલે મળી રહ્યું છે કેમ કે મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિપરા મર્યાદા ભેદમાં પણ પુષ્ટિજીવના 3 પ્રકાર બતાવ્યા છે અને સેવા ફલમાં પણ 3 પ્રકારના ફલ બતાવ્યા છે. એટલે સીધું આ બંનેમાં કનેક્શન મળી જઈ રહ્યો છે કે પુષ્ટિજીવ અંતર્ગત મિશ્ર જીવના 3 ભેદ અને એની સામે આ 3 પ્રકારના ફલ. એટલે બધા જ ટીકાકારોએ એનો અલગ અલગ વિચાર કર્યો છે. એટલે જેમ પ્રથમ એ વાત કહેવાય રહી છે કે પુષ્ટિ જીવને અલૌકિક સામર્થ્ય, મર્યાદા ને સાયુજ્ય અને પ્રવાહી પુષ્ટિને ત્રીજું ફલ. એમ પુષ્ટિજીવની કક્ષા પ્રમાણે મળનારા આ 3 ફલ છે. કેટલાકના મત પ્રમાણે ત્રણેય ફલો અનુક્રમે ઉત્તમ, મધ્યમ અને સાધારણ છે. વાત એ જ થઈ કે અધિકાર અનુસાર ફલ થશે.
એના પછી પ્રથમ પુષ્ટિ ભક્તિનું ફલ છે અને સાયુજ્ય અને સેવોપયોગી દેહની પ્રાપ્તિ આ બંને મર્યાદા ભક્તને મળી શકે. આ વિચારવાનું કારણ એ છે કે જે જીવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ ભક્તિ મર્યાદા ભાવથી કરે એટલે આગમ તંત્રના બતાવ્યા પ્રમાણે અથવા રામાનુજ, મધ્વાચાર્ય, વિષ્ણુ સ્વામી આદિ સંપ્રદાયો અંતર્ગત જે લોકો કૃષ્ણ ભક્તિ કરતા હોય એમને શું ફલ મળે, તો એ વિષયમાં એવું વિચારાયું છે કે એમને ભગવાનમાં સાયુજ્ય થાય, કેમ કે એ લોકો મોક્ષની કામનાથી भक्ति करता હોય છે. सॉरी, हमें हिंदी में करना था. तात्पर्य इन संप्रदायों को इनकॉर्पोरेट करने का ये है कि महाप्रभु जी सुबोधनी में ये आज्ञा करते हैं कि जैसे मैं भगवद आज्ञा से भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, उसी तरह रामानुज, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य इन तीनों संप्रदायों के प्रवर्तकों को भी भगवद आज्ञा हुई और भगवद आज्ञा के पालन के रूप में ही वो प्रकट हुए हैं. और इन तीनों के मत में मध्वाचार्य का मत तामस भक्ति मार्ग, रामानुज का राजस भक्ति मार्ग, विष्णु स्वामी का सात्विक भक्ति मार्ग और महाप्रभु जी का निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग, ऐसा महाप्रभु जी ने सुबोधनी में आज्ञा की है. इसलिए अब जब उन्हें महाप्रभु जी भगवद आज्ञा द्वारा ही प्रवर्तित संप्रदाय कह रहे हैं और उन्हें भले ही सात्विक, राजस, तामस इन कोटि में प्लेस कर रहे हों, तो इन्हें भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे ऐसा तो हम कह नहीं सकते, तो उनके किसी न किसी फल का निर्देश तो हमें करना ही करना है. इसलिए ये सोचा गया है कि उनके द्वारा की जाती भक्ति मर्यादा भक्ति है, सोपाधिक है, मोक्ष की कामना से है, इसलिए उन्हें सायुज्य मिलेगा. और अन्य जो है उन्हें जो पुष्टि हैं, जो लोग सायुज्य की मोक्ष की कामना रखे बिना भगवत भक्ति करते, निर्गुण भगवत भक्ति, उन्हें प्रभु का भजनानंद और भजनीय आनंद अलौकिक सामर्थ्य रूपी फल से मिलेगा. तो ये भी एक विचार का पक्ष है. कुछ विचारकों के मत में सायुज्य उत्तम फल है और अन्य दो जो उत्तम फल है उनकी योग्यता अधिकार सिद्धि अनुरूप अवान्तर फल है. अर्थात सायुज्य तो मुख्य फल, सायुज्य तो होगा ही, फिर सायुज्य के बाद या तो सेवोपयोगी देह की प्राप्ति और या तो अलौकिक सामर्थ्य, ये विकल्प से भगवान देंगे. तात्पर्य इन फलों को इस प्रकार से विचारने का ये है कि इन फलों की परिभाषा सभी विचारकों ने अलग अलग सोची है. और जैसे हमने कल ये बात को सोची थी कि महाप्रभु जी ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं दिया है और भक्ति मार्ग में सभी भक्तों में भाव भेद इतना सारा है कि किसके लिए क्या फल है इसे हम बोल नहीं सकते हैं. जैसे कल मैंने सूरदास जी का उदाहरण दिया था, तो हम सूरदास जी के बारे में ये सोचे कि अरे सूरदास जी को तो कीर्तन सेवा के अलावा कुछ नहीं मिला, परंतु सूरदास जी अपनी उस कीर्तन सेवा में अपनी भक्ति भाव को फुलफिल्ड मान रहे हैं, तो हम नहीं होते कोई उनके फल को जज करने वाले या उनके भाव को के विषय में कोई भी जजमेंट देने वाले. तो इसलिए किसी जैसे हरिराय जी के मत में विप्रयोग ही परम फल है, किसी के मत में संयोग और विप्रयोग दोनों ही समान रूप से फल हैं, कोई संयोग को ही फल मानता है. तो इन सभी भेदों के कारण ही इन फलों के निर्देश में सभी टीकाकारों के मतभेद हैं. तो एक पक्ष ये भी है कि सायुज्य तो होना ही होना है और सायुज्य के बाद जैसे भगवान अपने में से जीव को पुनः प्रकट करके फिर फल देंगे, उसमें ये दोनों विकल्प हमें अवेलेबल हैं. उसके बाद पहले दो अर्थात सायुज्य और अलौकिक सामर्थ्य ये दोनों पुष्टि भक्ति के फल हैं और सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ये मर्यादा भक्ति का फल है. और ऐसा नहीं है कि जैसे हमने महाप्रभु जी ने फलों का निर्देश अपने संप्रदाय के विषय में किया है, उसी तरह अन्य आचार्यों ने भी, ऐसा नहीं है कि मुक्ति को कोई अन्य प्रकार से डिफाइन ना किया हो. उन्होंने भी मुक्ति के विषय में अपनी दीनता, रामानुज, मध्वाचार्य आदि ने भी भागवत को प्रमाण माना है. भागवत के विषय में उनकी टीका आदि भी मिलते हैं, तो उनमें वो इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि भागवत में ब्रजभक्तों को जैसा फल मिला वो बहुत उत्तम फल है. जैसे महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति की प्रशंसा की है, उसी प्रकार उन्होंने भी ब्रजभक्तों के भाव की प्रशंसा की है. इसलिए भले ही थोड़ी बहुत सोपाधिकता रही हो, परंतु ब्रजभक्तों का जो भजन के प्रति या भगवत सेवा, समर्पण आदि के प्रति जो भाव है, उस भाव को अप्रिशिएट तो प्रत्येक भक्ति मार्गी करता ही करता है.
इसलिए वैकुंठ में हमें भगवत सेवा का मौका मिल जाए अथवा हमें प्रभु कंकड़ पत्थर गाय मोर पक्षी ऐसा कुछ भी बना दें कि ताकि हमें प्रभु के चरण की रज ही मिल जाए, ब्रजभक्तों का ही कुछ संसर्ग मिल जाए, ऐसा सब वर्णन तो अन्य संप्रदायों में भी हुआ है, केवल हमने किया हो ऐसा नहीं है। तो मर्यादा भक्ति का भी ये फल है, क्योंकि उनकी भी कामना ऐसी होती है, पर वो सोपाधिक होकर होती है करके वो हम उसे मर्यादा भक्ति कहते हैं। अथवा वैष्णव आगम तंत्र आदि में भी नारद पंचरात्र में भी पूरे व्रजभक्तों का बहुत निरूपण नारद जी ने भी किया है। नारद जी ने व्रजभक्तों की स्तुति की है कि उनके जैसा भाव तो हमारे अंदर भी नहीं है या दुर्लभ है। तो ऐसे तंत्र की प्रणाली को फॉलो करने वाले लोग भी इस भक्ति को तो जानते ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब कुछ बहुत मैकेनिकल हो करके मर्यादा भक्ति का फल भी यहाँ इस प्रकार से सोचा गया है। और प्रथम तीसरा अंतिम पक्ष ये है कि जो अति अंतरंग सेवा जो होती है अर्थात श्रृंगार की, ठाकुर जी को जगाने की, पढ़ाने की, रसोई की, ये अंतरंग अति अंतरंग सेवा का फल अलौकिक सामर्थ्य है। और थोड़ी कम अंतरंग हो उस सेवा का फल सायुज्य है, और बहिरंग सेवा का फल सेवोपयोगी देह की प्राप्ति है, ऐसा भी कुछ टीकाकारों का मत है। तो ये विकल्प से इन सभी फलों की कोटि और अधिकार का विचार किया गया है। जैसे मैंने कल भी ये बात कही थी कि इस विषय में हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं और देना हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, परंतु इस विषय हम क्लियर जरूर रह सकते हैं कि सभी टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से इन फलों को सोचा है और भक्त को अपने भाव अधिकारानुसार फल की प्राप्ति होती है, और मेरा जैसा भाव हो उसमें मुझे अपनी फलानुभूति का संतोष मिलेगा, और मुझसे भिन्न किसी और का भाव हो तो उसे उस फल में ही फलानुभूति होगी। हम किसी भी व्यक्ति को कितना ही क्यों ये ना कह दें कि अलौकिक सामर्थ्य ही सर्वोत्तम फल होता है, परंतु यदि किसी जीव की रुचि या मानसी प्रभु की परिचर्या में ही बैठ गई हो तो उस व्यक्ति को सेवोपयोगी देह की प्राप्ति ही फल रूप लगेगा, या विप्रयोगानुभवी को सायुज्य ही फल रूप लगेगा। तो भाव भेद से और अधिकार भेद से इनका निर्णय सोचना चाहिए। बेसिकली मैं जो कहना चाहती हूँ ये कि किसी कंक्लूजन पर हम इस विषय में आ नहीं पाएंगे कि कौन किसका अधिकारी और कौन सर्वोत्तम फल वगैरह वगैरह, ये डिसीजन हम कभी नहीं दे सकते हैं। રાજા અહીંયા અવાંતર ફળને કઈ રીતે સમજવાનું? अवान्तर फल का मतलब यही है कि सायुज्य मुख्य फल है। सायुज्य हो जाने के बाद, जैसे हमने सायुज्य के दो विकल्प सोचे थे कि सायुज्य के बाद भगवान किसी जीव को प्रकट करते हैं और सायुज्य के फल के रूप में सायुज्य हो जाने के बाद जीव को प्रभु पुनः प्रकट करके और फिर उसे फलदान करते हैं, उसे यहाँ बताया जा रहा है कि सायुज्य तो मुख्य फल है, वो तो होना ही होना है, क्योंकि मुक्ति जैसे अक्षर ब्रह्म में ज्ञानी का लय होता है उस तरह भक्त का भगवान में लय होता है, पर फिर उसे भगवान प्रकट करते हैं और अवान्तर फल के रूप में या तो अधिकार अनुसार से अलौकिक सामर्थ्य देंगे और उतना अधिकार नहीं हुआ तो सेवोपयोगी देह की प्राप्ति करवाएंगे। ऐसे जी राजा। हेलो राजा, हाँ? अभी आपने ये कहा कि अगर अधिकार होगा तो उसे अलौकिक सामर्थ्य मिलेगा और इतना अधिकार नहीं हुआ तो सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होगी। ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है। आपने पहले समझाया था कि मुख्य फल सेवोपयोगी देह और गौण फल अलौकिक सामर्थ्य, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। एक बार से क्लियर कर दीजिए ये बात। यहाँ मैंने अधिकार के हिसाब से जो फल का निर्देश किया गया है उसमें चौथे नंबर पे जिस टीकाकार का मत कंसिडर किया गया है ना, उसे मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी मैंने तो पहले ही दिन ये बात कह दी थी कि मुझे लालू भट्ट जी का जो स्टैंड है वो ही जस्टिफाइड ज्यादा लगता है करके, मैं तो हमेशा उसे ही प्रेजेंट करती हूँ जब भी फलों की बात आती है तब। क्लियर पर यहाँ हम
सभी टीकाकारों को और उनके मतों को कंसिडर कर रहे हैं, तो सभी को एक बार सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। हमारे लिए तो सब इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, हम तो ये डिसीजन लेना हमारे हाथ का नहीं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं। तो इसलिए इन सभी के मतों को हमने पढ़ लिया है, जान लिया है। बाकी तो प्रभु किस जीव को क्या देंगे, किसका अधिकार क्या है, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। जब होना होगा तब उस प्रकार हो जाएगा। पर टू बी क्लियर, बात इतनी है कि सेवाफल ग्रंथ के विषय में हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं, और इन सभी के विषयों को देखकर पढ़कर किसी कंक्लूजन पर आने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बेटर कि हम जजमेंटल ना हो इन सभी टीकाकारों के मत को लेकर। जो भी इस विषय को सोच रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब महापुरुष हैं, अपने बड़े हैं, अपने अपने भावानुसार उन्होंने बताया है। तो इन सभी को हमें सुन लेना चाहिए और उनके स्टैंड को उन्होंने जिस तरीके से जस्टिफाई किया है उसे हम समझ लेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? કરું રાજા આગળ? ठीक है, हाँ कर। ભગવાનની અનુભૂતિના અનેક પ્રકારો હોઈ શકે છે, પરંતુ ભગવાને જેને જેવો ભાવ આપ્યો હોય તદ અનુસાર ભગવાનની અનુભૂતિના પ્રકારોમાં ભક્તોને ફળરૂપતા જણાતી હોય છે। મતલબ ભગવાનની અનુભૂતિ અનેક પ્રકાર થઈ શકે છે, પરંતુ ભગવાને જેને જેવો ભાવ આપ્યો હોય તે રીતે ભક્તો તેમની સેવા કરતા હોય છે અને એમાં જ એમની ફળરૂપતા જણાતી હોય છે। આખી ફળની બાબતમાં ઉપર જે મતભેદો જણાઈ રહ્યા છે તેનું કારણ અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ ભક્તોની ફળ રુચિની ભિન્નતા જ સમજવું જોઈએ। આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તોને પણ સેવા ફલોક્ત ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે। ભગવાન જે જીવને ફળનું દાન કરવા ઈચ્છે છે તેને કયા સાધન દ્વારા ક્યારે અને કયું ફળ આપવું તે પહેલેથી જ નક્કી કરી રાખતા હોય છે। મતલબ આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તોને પણ સેવા ફલોક્ત ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે। પ્રભુ જે જીવને જે રીતે ફળ આપવા ઈચ્છતા હોય જે સાધન દ્વારા તે રીતે અગાઉથી નક્કી કરીને જ રાખેલું હોય છે। આને અનુક્રમે સાધન વરણ, જન્મ વરણ અને ફળ વરણ કહેવામાં આવે છે, જેને સાધન વરણ, જન્મ વરણ અને ફળ વરણ કહેવામાં આવે છે। અતએવ જીવ ભગવાન દ્વારા ઈચ્છિત સાધન કરીને નિર્ધારિત ફળને નિર્ધારિત જન્મમાં પ્રાપ્ત કરતો હોય છે। મતલબ જીવ ભગવાને જે સાધન કરીને ફળ આપવા ઈચ્છતા હોય એ સાધન જીવ કરે ત્યારે તેને તે જન્મમાં નિર્ધારિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં પહેલું ગુણગાન પૂર્વક સ્વગૃહમાં તન્વીતજા સેવા અથવા બીજું કેવળ ગુણગાન, આ બે મુખ્ય સાધનોનું નિરૂપણ શ્રી આચાર્ય ચરણે કર્યું છે। મતલબ પુષ્ટિ માર્ગમાં બે સાધન બતાવવામાં આવ્યા છે। પહેલું પ્રભુના ગુણગાન પૂર્વક મતલબ શ્રવણ કીર્તન પૂર્વક સ્વગૃહમાં તન્વીતજા સેવા કરવી અને બીજું કેવળ પ્રભુના ગુણાનુવાદ કરવા। આ બે મુખ્ય સાધનોનું નિરૂપણ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ કરેલું છે। ગુણગાન સંયુક્ત સેવા અથવા કેવળ ગુણગાન દ્વારા પ્રભુમાં અનુક્રમે પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન કેળવીને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગી સેવાફળ ગ્રંથોક્ત ફળને પોતાની યોગ્યતા અનુસાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે। મતલબ આ બે સાધનો બતાવ્યા કે પ્રભુના ગુણગાન પૂર્વક તન્વીતજા પ્રભુની સેવા કરવી અને બીજું કેવળ પ્રભુના ગુણાનુવાદ કરવા, જેનાથી પ્રભુમાં પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન એવી અવસ્થા પુષ્ટિ ભક્તોને સિદ્ધ થઈ શકે છે। મતલબ એની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। પુષ્ટિ માર્ગ
એ કૃપાનો માર્ગ છે. અતએવ અહીં સુધી પુષ્ટિ માર્ગીય સાધન અને ફળોનું જે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેમાં પ્રભુની વિશેષ કૃપાવાન પુષ્ટિ જીવોનો જ અધિકાર સમજવો જોઈએ. મતલબ પુષ્ટિ માર્ગ એ કૃપાનો તો માર્ગ છે જ, અને જે અહીંયા પુષ્ટિ માર્ગીય સાધન અને ફળોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેમાં પ્રભુની વિશેષ કૃપાવાન જે જીવો હોય છે તેને આ ફળોનું દાન પ્રભુ કરતા હોય છે. મતલબ એ પુષ્ટિ જીવો અધિકાર એ ફળો પ્રાપ્ત કરવાને હોય છે. પ્રભુ કૃપા વિહીન જીવોનો તો આ માર્ગમાં પ્રવેશ પણ શક્ય નથી હોતો. મતલબ જો પ્રભુની કૃપા ન હોય તો આ માર્ગમાં જીવ પ્રવેશ જ નથી કરી શકતો. પૂર્વોક્ત ફળોની અનુભૂતિ તો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીને ભગવાન કરાવે ત્યારે જ થઈ શકતી હોય છે. મતલબ હમણાં જે આગળ 3 ફળોની વાત થઈ તે પુષ્ટિ માર્ગીય ફળ ભગવાન જ્યારે પોતાની ઈચ્છાથી કરાવે ત્યારે જ થઈ શકે છે, પરંતુ ફળની અનુભૂતિ કરવા યોગ્ય પોતાને બનાવવા માટે ભક્તને ભાવની જે અવસ્થા સાધના ચરણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે તેને સંપ્રદાયમાં નિરોધ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ એ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટેની જે અવસ્થા જીવે કેળવવી પડતી હોય છે એના માટે જે સાધનો બતાવવામાં આવ્યા એ સાધન દ્વારા પ્રભુ ફળ આપી શકે છે, અને એ સાધનને આ સંપ્રદાયમાં નિરોધ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અતએવ પ્રાસંગિક હોવાથી નિરોધના સંબંધમાં સંક્ષિપ્ત વિચાર કરવામાં આવે છે. નિરોધ અહીંયા પ્રાસંગિક મતલબ જરૂરિયાત હોવાથી તેનો અહીંયા આપણે હવે સંક્ષિપ્તમાં વિચાર કરીશું. करो राजा આગળ. तात्पर्य यहाँ ये है कि जैसे हम 2 दिन से इस बात को समझ रहे हैं कि फलानुभूति का प्रकार सभी व्यक्तिगत भक्त के अनुसार अलग अलग होता है. किसी को भी फल की अनुभूति एक ही तरीके से और एक ही फल में नहीं हो जाती है. इसलिए फल रुचि भक्त की भी अलग अलग होती है और उनकी फल रुचि को भगवान कंसिडर करके और उन्हें ऐसा फल देते हैं. तो तात्पर्य यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जैसे एक जीव वर्ण होता है कि जहाँ भगवान दैवी और आसुरी का वर्ण करके और जीवों को पुष्टि मर्यादा और प्रवाही इन तीनों फलों में और इन तीनों जीवों में विभाजित करते हैं, उसी तरह साधन वर्ण और फल वर्ण भी होते हैं कि जिसमें किस जीव से क्या साधन भगवान कब लेना चाहते हैं और वो साधन की परिपूर्णता भगवान क्या मानते हैं और फिर उन्हें क्या फल देना चाहते हैं, ये भी भगवान निश्चित करते हैं. इसलिए जीव जो है वो भगवान द्वारा इच्छित साधन करके निर्धारित फल को निर्धारित जन्म में ही प्राप्त करता है. जैसे हमने कल ये बात समझी थी कि हम ऐसा समझते हैं कि हमने सब कुछ निषिद्ध छोड़ दिया है, हम सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं, फिर भी हमारी सेवा फल रूपा क्यों नहीं बन रही है. तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, या 84 वैष्णवों को जैसा अनुभव हो गया ऐसा अनुभव हमें कब होगा, ऐसा सब हमारे मन में आ जाता है. परंतु भगवान ये डिसाइड करते हैं कि किस जीव को भगवान कब जाकर और फल देना चाहते हैं. इसलिए हम कितना ही साधन कर लें, परंतु इस जन्म में अगर हमें फलदान करने का प्रभु ने निश्चय नहीं किया है तो हमें इस जन्म में ठाकुर जी वो फल नहीं देंगे और प्रभु ही अपनी तरफ से कुछ व्यवधान प्रकट कर भी देते हैं. तो तात्पर्य ये है कि महाप्रभु जी ने फलों का निर्देश कर दिया है, पर ये फल हमें कब मिलेंगे, कौन से साधन द्वारा मिलेंगे, अथवा हमारे साधन को कब भगवान फुलफिल होने देंगे, ये सब कुछ प्रभु डिसाइड करते हैं. तो हमें जितने भी साधन के ऑप्शंस महाप्रभु जी ने अवेलेबल करवाए हैं, उन साधनों में से कौन से साधन द्वारा अपनी भक्ति को प्रभु एक्सेप्ट करेंगे, ये भी ठाकुर जी ही डिसाइड करते हैं. इसलिए महाप्रभु जी द्वारा बताई गई गुणगान और तनुवित्तजा सेवा के द्वारा
प्रेम आसक्ति व्यसन तक पहुंचकर पुष्टि भक्ति मार्गी सेवाफल ग्रंथ में बताए गए फल के लिए योग्य बन जाता है। पर अब उसकी योग्यता प्राप्त हो जाने के बाद भगवान उसे कब फल देंगे, वो टाइम भगवान डिसाइड करते हैं फुलफिलमेंट का। कि जैसे जड़ भरत जी का सब कुछ पूरा ही था, पर बस अंतिम समय में इतनी सी गलती हो गई और बाजी पलट गई, एक नया जन्म मिला उनको। तो ऐसा प्रभु कर देते हैं कि फलोन्मुख योग्यता अभी इस जन्म में न हो तो थोड़ा समय और विलंब अंतराय प्रकट करके फिर फलदान करते हैं। ये सब फल के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार यहाँ बताए गए हैं। परंतु फल में विलंब हो या हमें हमारा इच्छित साधन न मिले या दूसरे लोग जितना साधन कर पा रहे हैं उतना साधन अपने से न हो पाए, तो इन सब में प्रभु ने हमारा साधन वरण इस अनुसार इतनी ही योग्यता मानकर अभी के लिए किया है, ऐसा मानकर वेट करना चाहिए। जब प्रभु चाहेंगे तब वो साधन हमसे लेंगे और अपना साधन को फलोन्मुख भी बनाएंगे। क्योंकि बिना कृपा के तो हम इस मार्ग में ही नहीं आते, तो मार्ग में आ गए हैं तो आगे की गति भी प्रभु अपनी कृपा से निश्चित करेंगे, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। ये आश्वासन है अपने लिए। इसलिए इतनी बात फल के विषय में यहाँ तक स्पष्ट हो गई है। अब निरोध के विषय में संक्षिप्त विचार यहाँ किया जाएगा, क्योंकि निरोध भी जो है वो फल है। तो निरोध का विषय अब यहाँ आगे जाकर आएगा। फलों के विषय में जो निर्देश था वो अभी तक हो चुका है। अब इस विषय में कोई प्रश्न हो? जी राजा। हाँ राजा, एक बार अवान्तर फल क्या बताया आपने? अवान्तर फल का मतलब कम से थोड़ा कम, कि एक मुख्य फल होता है और मुख्य फल के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनका अवान्तर फल मिलता है। मतलब जैसे हम किसी स्पेसिफिक जगह के लिए निकले हैं अपने घर से, परंतु रास्ते में हम कुछ भी काम निपटाते गए, पर हम वो काम निपटाने के लिए नहीं निकले थे, पर ऑन द हो गया, इसे अवान्तर फल कहा जाता है। जी राजा, समझ सबऑर्डिनेट। हेलो। हाँ राजा, दो प्रश्न थे। एक तो इसमें जब भी ये गोपी बहन ने अभी बोला तो भी उसमें आया था कि जीवना स्वभाव अनुसार इन्हें फल मिले, तो यहाँ स्वभाव में हम लोग सत्व रजतम गुण ले सकते हैं कि नहीं, ये पहला प्रश्न था। और सेकंड ये था कि जो नित्य लीला की सृष्टि है वो ये क्रम में आएगी कि नहीं, क्योंकि ये फल के क्रम में उनकी बात आएगी कि नहीं, क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी ठाकुर जी की लीला में है। पर 84,252 वैष्णव की बात करें तो वो सृष्टि प्रकट हुई थी और वो सृष्टि वापस ठाकुर जी की कृपा से वापस नित्य लीला में प्राप्त हुई। या इवन गुसाई जी और महाप्रभु जी की बात करें तो हम नित्य लीला के जीव मानते हैं, तो उनको जो फल मिल रहा है वो सेवोपयोगी देह है कि नहीं, या वो तीन फलों का कॉम्बिनेशन है, या वो ये कोटि में आ ही नहीं रहे, वो अलग ही सृष्टि है, वो थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए। नित्य लीला की जो सृष्टि है ना, वो तो पूरी की पूरी भगवान द्वारा प्रकट की हुई है और वो अक्षर ब्रह्म से नहीं उत्पन्न होती है, सीधे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है। इसलिए उन्हें तो हम यहाँ साधन और फल की कैटेगरीज में काउंट नहीं करते हैं। जी राजा। बाकी अन्य फलों के विषय में हम क्या चाह रहे हैं, ये कभी भगवान कंसीडर करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। अब भाव में जब तक बात सात्विक राजस तामस की है तो निर्गुण अंतर्गत भी सात्विक राजस तामस होते हैं, और स्वतंत्र रूप से सात्विक राजस तामस की बात हम इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि महाप्रभु जी भक्तों के अधिकार में सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण ऐसे करके तत्वादीप निबंध में स्वरूप योग्यता बता रहे हैं। इसलिए हम पूर्णतः राजस और तामस ये कैटेगरीज को तो स्वरूप योग्यता में भी जब महाप्रभु जी नहीं काउंट कर रहे हैं तो फलोन्मुख योग्यता की तो बात नहीं खड़ी होती। हम भले राजसी तामसी हों परंतु हो जाएंगे सात्विक कभी न कभी, और सात्विक होंगे तभी हमारी भक्ति सेवा आदि में भी वृद्धि हो पाएगी। पर मुख्य तात्पर्य ये है कि महाप्रभु जी ने यहाँ जो भाव भेद स्वभाव भेद आदि कह रहे हैं
या हम जिन्हें भाव भेद, स्वभाव भेद, अधिकार भेद आदि कह रहे हैं वो निर्गुण अंतर्गत सत्व रजतम है, स्वतंत्र सत्व रजतम नहीं है। भाव भेद की जब तक बात है तब तक किसी को ठाकुर जी के अंतरंग सेवा में रुचि होती है, किसी को बहिरंग में होती है, किसी को अध्ययन में होती है, किसी को प्रभु के गुणों में आसक्ति होती है। तो पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाही पुष्टि, ये जो तीन महाप्रभु जी ने भेद बताए वो भी क्रियापरायणता, गुणज्ञता और सर्वज्ञता इन्हीं के बेसिस पर बताए। तो इसलिए उन्हें भी हम भाव भेद और अधिकार भेद कह सकते हैं, पर शुद्ध राजस तामस की यहाँ बात नहीं है। निर्गुण अंतर्गत सत्व रज और तम, इतना हम कह सकते हैं। जी राजा, ये थोड़ा यही क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि अभी आपने बता दिया तो सात्विक से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ गए। हाँ, રાજા દંડવત પ્રણામ। રાજા, મને એવો ક્વેશ્ચન હતો કે એ જે અંતરંગ સેવામાં હોય ઠાકોરજીના ધામમાં, તો એમાં સૃષ્ટિનો જ્યારે લય થાય ત્યારે એ બધા તો એમનો સાથે લય થશે કે? वो सृष्टि का लय हो ही जाता है प्रभु के साथ, अर्थात प्रभु में उनका लय प्रभु चाहे तो करते हैं। बाकी अक्षर ब्रह्म पर्यंत सृष्टि का लय होता है, पर ये सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म से प्रकट नहीं हुई है, साक्षात पुरुषोत्तम से प्रकट हुई है। ठीक है, आज का यहाँ रखते हैं। कुछ और प्रश्न हो तो हम उन्हें ले लेंगे फिर बाद में। दंडवत प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम राजा।